Hello friends and my dear students, welcome you all in Saraswat International Academy again. Okay, so in previous lecture or in previous video we completed many sums in your exercise 5.3, right? So now today we are going to start question number 10 in your exercise 5.3. Okay, so let's start guys. You just see. See in this sum, so that a1 a2 up to an, okay, form an AP. Means ये जो है a1 a2 up to an form an AP where an is defined as an is equal to 3 plus 4n. What is an guys? An is your last term, right? An जो है वो आप लोग की last term है. Okay, so you just see one relation is given in your example, an is equal to 3 plus 4n. Okay, so you just see guys, here we have an. Okay, an is equal to what? 3 plus 4n. Okay guys, here we have this an is equal to 3 plus 4n. You now see, आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे n के जगह पे 1 अगर रिप्लेस करूँ, n के जगह पे 1 रिप्लेस करूँ, so 3 plus 4 into 1. Okay, so 3 plus 4 1 side is 4, so your answer is 7. Okay guys, clear? Moving to next, अगर आप लोग यहाँ पे n के जगह पे 2 प्लेस करो, ओके, सो a2 n के जगह पे 2 over here, 3 plus 4 into 2, right? So 3 plus 4 2s are it's 8. Okay, so your answer is 11. Okay, now moving to next, you just place the value of n is 3, right? n की वैल्यू आप लोग 3 प्लेस करोगे, so 3 plus 4 into 3, right? n की जगह पे आप लोग 3 प्लेस करो, right? So 3 plus 4 3s are it's 12, so 12 plus 3 it's 15. Okay, so this is a1 a2 a3. a4 भी प्लेस कर सकते हो, बट इट्स ओके, हम लोग यहाँ पे हमारा AP फॉर्म कर रहे हैं. हियर आर AP इज व्हाट? हियर सी योर फर्स्ट टर्म इज 7. एक्चुअली देखो आप लोग के पास a1 a2 a3 सो ऑन अप टू an, ये आप लोग को सब में गिवन है. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP है, ऑफ एन AP, राइट? सो यू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ a1 a2 a3 एंड an. आप लोग यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करते जाओ, तो a1 की वैल्यू कितनी है? इट्स 7. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2? इट्स 11. व्हाट इज द a3? इट्स 15. सो ऑन, कहाँ तक जाना है? an. एंड विच वन इज योर लास्ट टर्म? लास्ट टर्म इज 3 प्लस 4n. तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो 3 प्लस 4n. ऑल ऑफ यू गेटिंग मी? ओके, so this is your AP guys. Now what we have to find in this sum of the first 15 terms in each case. यहाँ पे guys हमारे पास दो sum है. This one is your first, second sum. After that we will do. Okay, so this is our AP. Okay, हम लोग को sum of 15 terms find करनी है. So you just see, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ sum of what? Sum of first 15 terms. Sum of first 15 terms. So we will use this formula. Sn is equal to what? You know very well कि by n upon 2 into bracket, it's n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Okay, so here we have n upon 2, right? n के जगह पे आप लोग क्या प्लेस करोगे? 15. Okay, you just put the value of n as a 15. Okay, same way over here, 15 upon 2. And why we are using this 15? Because we have to find 15 terms addition, or we can say that sum of first 15 terms. Okay, so 15 upon 2, here 2 as it is, 15 minus 1 as it is, n value of n is 15, 1 as it is. What is d? We don't know right now. What is a? We don't know. Okay, so in order to find the sum of 15 terms, first what we have to find? First we have to find what is our first term. फर्स्ट टर्म कौन सी है? तो गाइज फर्स्ट टर्म इज 7, एज यू नो वेरी वेल. व्हाट इज डी? हाउ टू फाइंड डी? सो यू नो दैट कि भाई डी मीन्स कॉमन डिफरेंस एंड फॉर्मूला फॉर दैट इज a2 minus a1. ओके, सो हियर a2 इज 11, a1 इट्स 7. सो व्हाट इज 11 minus 7? It's 4. Okay, so now place the value of a and d into the formula. Okay, so 15 upon 2 as it is. Here see, what is the value of a? It's 7, d is 4, right? So 7 2s are 14, 15 minus 1 it's 14 again, and 4 as it is, right? So 15
upon 2 into bracket 14 fours are, you just see guys, 14 fours are, it's 56. So your answer is 15 upon 2 into 56 plus 14, so it's 17. So 235s are, so your answer is 15 into 35. Okay, so 15 into 35, you just do the multiplication and we will get, I think so, 525, right? This is our final answer. आई होप कि इट्स क्लियर, आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये करते हैं, ठीक है? सो क्लियर गाइज ऑल ऑफ यू, ओके? सो नाउ मूविंग टू सेकेंड केस. दिस इज योर फर्स्ट केस गाइज, ओके? नाउ मूविंग टू सेकेंड वन. सेकेंड वन में आप लोग देखो गाइज क्या है, ओके? जस्ट 1 मिनट. सेकेंड वन हैविंग डिफरेंट वैल्यू एज कंपेयर टू योर फर्स्ट. an वैल्यू इज डिफरेंट. ओके गाइज, an की जो वैल्यू है वो थोड़ी डिफरेंट है. यू जस्ट चेक, ओके? आफ्टर दैट वी विल कंप्लीट और वी विल डू. ओके, सो हियर द second case having an is what guys? 9 minus 5n. okay, 9 minus 5n. okay, so here we have this an. हम लोग ने प्रीवियस सम में क्या किया था, और प्रीवियस केस वी विल डू लाइक यू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ n लाइक 1. तो 9 minus 5 into 1. So your answer is 9 minus 5. It's 4. Okay. Then next, आप लोग क्या करोगे? 2 प्लेस करो. चलो 9 minus 5, value of n is 2. So 9 minus 5 2s are 10, right? So your answer is 9 minus 10. It's negative 1. Okay. Then after A3 again see, A3 means what? के value of n is 3. आप लोग यहाँ पे खाली n की वैल्यू चेंज करते जाओ, ठीक है? सो योर आंसर इज 9 minus 5 3 is 15. सो 9 minus 15 it's -6, राइट? क्लियर गाइज? यहाँ पे 1 डाला तो 9 minus 5 1s are 5, 9 minus 5 is 4, 9 minus 5 2s are 10, 9 minus 10 it's -1, 9 minus 5 3s are 15. So your answer is -6. Clear guys? Okay, so now we will write our AP. AP कैसे लिखते हैं? तो you know the general form A1, A2, so on up to AN. Okay, so here the value of A1 it's 4. After that value of A2 it's -1, A3 it's -6, so on, and AN. Which one is your AN? AN is 9 minus 5n. Okay, so here we have this AP. okay, हम लोग ने प्रीवियस सम में क्या फाइंड किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल A means your first term and first term value is 4. D means what? Second term minus first term. Second term is -1, first term it's 4. So -1 minus 4. So your answer is it's -5, right? See, this is your value of A and D. Clear? Okay, so now moving to next. Listen, A and D is available. Now what we have to find the way? We have to find the sum of first 15 terms. बराबर? Previous sum में जो था वही find करना है. Sum of first 15 terms. So sum of first 15 terms. Sum of first 15 terms. So here S n, you know the formula, right? N upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. Here the formula we have. Okay, so now you just place the value of n. First of all, n is 15, so 15 upon 2 as it is, right? N means 15 and 2 as it is. 2a, what is the value of a over here? A is 4 guys. Okay, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास? 4. 15 minus 1 as it is. What is the value of d? D it's -5. Bracket over. So 15 upon 2 multiply by 4 2s are 8. See, plus 14. 15 minus 1 it's 14 and minus 5 as it is. So 15 upon 2, 8 as it is. Plus minus is minus guys. 14 5 it's what? 70. So 15 upon 2, 8 minus 70 guys. 8 minus 70 is what? It's -62. Okay, so 2 31s are, so your answer is 15 into -31. So you just do the multiplication and tell me the guys answer final. Okay, 15 into 31. 15 into 31 is what?
15 into minus 31, it's minus 465 guys. Okay, it's minus 465. I hope कि it's clear to you. बराबर, आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि आंसर कैसे फाइंड कर रहे हैं. बराबर. सो दिस इज योर 10th one guys. फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस हम लोग ने सॉल्व किया. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सम. 11th one we will do after that. Okay, first of all हम लोग जो 13 है 14 है थोड़े sums small है as compared to 11th one. That's why first of all we will do 13 and 14th one. Okay, so now moving to 14 number sum, right? Moving to 14 number sum, sorry 13 number sum, question number 13, right? So in this 13th one, you just see find the sum of, it's very simple guys, huh? Find the sum of first 15 multiples of 8. Multiples of 8 means what? यहाँ पे guys समझो 8 के multiples चाहिए. 8 के कितने multiples चाहिए? 15. तो मल्टीपल्स मीन्स व्हाट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 8 आर 8 के मल्टीपल्स मीन्स 8 का टेबल ही यूज कर लो तो अच्छा है. जैसे कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. ओके, इट्स 24, 8 4 ज़ा 32 एंड सो ऑन. कहाँ तक हम लोग को लिखना है? 15 मल्टीपल्स. मतलब ये तो मैंने 4 ही लिखे हैं, आप लोग 15 तक लिख सकते हो. बराबर, पर AP ही लिखना है तो सी मैं AP लिख रहा हूँ और ये AP है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल. तो 8 16 24 32 एंड सो ऑन. अभी गाइज आप लोग देख लो AP है कि नहीं. जैसे कि 16 में से हम लोग 8 माइनस करें सो यू विल गेट 8, 24 माइनस 16 इट्स 8, 32 माइनस 24 इट्स 8. सो गाइज दिस वन इज योर AP. ये AP ही है तो आप लोग डोंट वरी. बराबर, AP है कि नहीं वो चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं. दिस वन इज योर AP, राइट. सो नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है? तो उसका सम फाइंड करना है. चलो, द सम ऑफ, बट बिफोर वी आर गोइंग टू फाइंड दिस सम, we have to find the first term. Okay, first term is which one? It's 8. What is D? D as you know very well, A2 minus A1. What is A2? A2 it's 16, A1 is it's 8. So 16 minus 8 is 8, right? Here we have the value of n guys. Okay, value of n is what? कि हम लोग को कितनी टर्म्स जो है उसका सम फाइंड करना है. हाउ मेनी टर्म्स बराबर आर देयर इन आवर सम? तो भाई 15 टर्म्स. what we have to find sum of 15 multiples of 8. It means first जो 15 multiples है उसका आप लोग को एडिशन फाइंड करना है. तो n is equal to 15. Okay, now चलो moving to next. What we have to find? Sum of 15 terms. 15 हम लोग लिखते हैं terms, right? चलो, so here we have the formula. You know very well, Sn is equal to n upon 2 into bracket 2a plus n minus 1 into d. This one the formula we have. Okay, so n means 15. Over here 15 upon 2 into the bracket. Here the value of a we have, value of a it's 8, n minus 1, n means what? 15 na? So it's 15 minus 1. What is d? D is 8. Okay, d is 8. So 15 upon 2, 8 2s are 16, 15 minus 1 it's 14, 8 as it is and bracket over. So 15 upon 2 into the bracket 16, 14 8s are guys, 8 4s are 32, 3 8 1s are 8 plus 3 it's 11. So your answer is 112 guys. Okay, answer is 1 sorry okay. Now 112 right. Now इन दोनों को ऐड करो so you will get I think so 15 upon 2 into 112 plus 16 करो so you will get 128
ओके 112 प्लस 16 सो इट्स 128. सो योर आंसर अगर कैंसलेशन करें तो 264 इट्स 128. ओके सो योर आंसर इज 15 into 64 guys. So now tell me what is 15 into 64. 15 into 64 is, I think so, it's 960 guys. So sum of first 15 multiples of 8 is what? 960. Sum of 15 multiples of 8 is 960. So I hope कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये सम कैसे करते हैं guys. Okay, so it's clear all of you. So now moving to 14th number sum, right? Moving to 14th number sum. Okay, 14th one you just see guys, observe the 14th number sum. In that sum what we have to do, 14th one we have question number 14. So here find the sum of the odd numbers between, this one is between, huh guys, between 0 and 50. 0 and 50. देखो गाइस, इसमें यहाँ पे हमारे पास 0 से लेके 50 के बीच में जितनी भी मतलब टर्म्स है, बराबर, ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर 0 से लेके 50 तक में जितने भी ऑड नंबर्स है उसका सम फाइंड करना है. व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सम, सो हियर वी हैव टू फाइंड okay the additions of odd numbers between 0 to 15, जितने भी 0 to, sorry not 15, it's 50. so 0 से लेके 50 तक में जितने भी odd numbers है उसका सम फाइंड करना हो तो सबसे पहले तो मुझे AP लिखना होगा. odd numbers between 0 to 50, so first odd number is 1 guys. okay, then 3, 5, 7 and so on. एंड देखो गाइस 50 इज योर इवन नंबर और उससे पहले कौन सा नंबर होगा, इट्स 49. तो 49 इज योर ऑड नंबर गाइस. ओके क्लियर. सो ये आप लोग का हो गया एपी. ओके एपी ही है. चलो सो हियर इन दिस सम वी हैव ए फर्स्ट टर्म इज 1. डी मीन्स इट्स योर कॉमन डिफरेंस a2 minus a1, so it's 3 minus 1, so it's 2. Value of A it's 1, D is 2. Okay guys, getting me? Here one more thing that means we have like last term हमारे पास in this sum available, AN is available and it's 49 guys. अगर आप लोग के पास guys अगर AN है तो आप लोग उसमें से कुछ आप लोग को मिल सकता है, जैसे कि AN is 49 ना, AN is equal to 49. So you know the formula guys, A plus N minus 1 into D is equal to 49. Okay, so here what is the value of A? A it's 1. N minus 1, N minus 1 we don't have N, that's why उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ. What is D? D it's 2 is equal to 49. So therefore देखो n minus 1 2 as it is, 1 shifted towards the right hand side, so you will get 49 minus 1. So therefore n minus 1 into 2 as it is, 49 minus 1 it's 48. okay, so therefore n minus 1, ये 2 ये साइड गया तो डिवाइड में हो जाएगा बराबर. so therefore n minus 1 2 24 अगर कैंसलेशन करोगे तो you will get 24. okay, so here the value of n minus 1 is equal to 24 we have. So in order to find this n, 1 shifted towards the right hand side, so 24 plus 1. okay, so n is equal to 25. okay guys, n is equal to 25. Is this clear? okay, so now moving to next part, moving to next, what we have to find. भाई एक्चुअली तो हम लोग को सम फाइंड करना था ना, सम. हम लोग ने n क्यों फाइंड किया? why we find these n in this case? no need to find ना. एक्चुअली n किसके लिए चाहिए था कि भाई हम लोग को 0 और 50 के बीच में कितनी टर्म्स है, दैट वी मीन्स वी वांट टू नो कि कितनी टर्म्स थी 0 और 50 के बीच में, ऑड नंबर्स कितने थे. तो 25 जितने ऑड नंबर्स है. चलो ये 25 ऑड नंबर्स है उसको आप लोग ऐड करो, सम करो, मीन्स सम ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, सम ऑफ 25 टर्म्स
ओके, फर्स्ट 25 टर्म्स जो है वो ऑड नंबर्स है, जहां 0 से 50 के बीच में 25 जितनी ऑड टर्म्स है। ओके, सो 25, सॉरी इट्स 25, हाँ। ओके, सो Sn यू नो द फॉर्मूला, एंड हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करें तो चलेगा, n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस एल। ओके, क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। सो n इज 25/2, a we have a is what? A is 1. Okay, L means your last term कौन सी है? It's 49. Okay, so 25/2, 49 plus 1 it's 50, so 2 25s are, so last 25 into 25, so 25 into 25 it's 625, right guys? So your means sum of the odd numbers between 0 to 50 is 625। जितने भी ऑड नंबर्स है ना इन दोनों के बीच में, उसका एडिशन आप लोग देखोगे तो इट्स 625। ओके गाइज, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि भाई कैसे सम करते हैं। ठीक है, चलो, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम गाइज। नाउ हम लोग जो 11th नंबर का सम है वो देखते हैं गाइज। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आप लोग को समझना होगा। तो गाइज यहाँ पे वो सम करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को एक नोट दिखा देता हूं। नोट सी, अगर हमारे पास एक एपी है तो हम लोग एपी को लिखेंगे A1, A2, A3, ओके, A4, सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज an। ओके, लास्ट टर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ इट्स an। तो बिफोर द लास्ट टर्म विच सेकेंड लास्ट टर्म इज विच वन? इट्स an-1। ओके, लास्ट टर्म इज an, सेकेंड लास्ट टर्म इज an-1, राइट? सो देखो, अगर गाइज मुझे S1 फाइंड करना है, S1 मीन्स व्हाट के सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो S1 तो क्या होगा? A1। चलो, S2 मीन्स व्हाट? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहले दो टर्म्स का सम। ओके, तो पहले दो टर्म्स है A1 प्लस A2। ओके, क्लियर? चलो, S3 फाइंड करना है। आई वांट टू फाइंड S3, सो व्हाट वी हैव? S3 के लिए हम लोग को 3 टर्म्स का सम करना पड़ेगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, देन S4 के लिए फर्स्ट 4 टर्म्स मुझे फाइंड करनी होगी। ओके, चलो, सो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा S1 क्या है, S2 क्या है, S3 एंड S4, राइट? अभी मुझे समझो कि क्या फाइंड करना है। अगर मेरे पास सम में S1 अवेलेबल है, S2 अवेलेबल है, S3 इज अवेलेबल, S4 इज अवेलेबल एंड Sn इज अवेलेबल, राइट? तो गाइस Sn, और यहाँ पे काम करता हूँ Sn-1 और लास्ट टर्म दैट इज Sn। ओके, तो हमारे पास ये एक तो सम्स अवेलेबल है, और मुझे यहाँ पे क्या है? S1 इज इक्वल टू, आई नो कि भाई S1 जो है वो अपनी फर्स्ट टर्म है, ये तो अपनी फर्स्ट टर्म ही होगी। नाउ मीन्स A1 इज योर S1। अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करना है गाइस, सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को माइनस कर दूंगा। देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड, तो सेकेंड में से आप लोग फर्स्ट माइनस करके देखो आप लोग को क्या मिल रहा है। देखो, सेकेंड मीन्स S2, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सेकेंड मीन्स S2, फर्स्ट इज व्हाट? माइनस S1। ओके, एंड दिस साइड A1 प्लस A2 माइनस योर फर्स्ट टर्म दैट इज A1 ओनली। तो A1 बोथ कैंसल, सो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, राइट? क्लियर? तो गाइज देखो, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करते हैं मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। A1 अगर मुझे फाइंड करना है तो इट्स S1, अगर मुझे A2 फाइंड करना है तो मैं सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा, बराबर? अगर मुझे A3 फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा S3 माइनस S2, राइट? अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो मैं लिखूंगा S4 माइनस S3। बट नाउ इफ वी हैव टू फाइंड दिस AN, सो क्या करें? देखो, AN मीन्स व्हाट? यहाँ पे देखो 4 है तो 4 लिखा, तो AN है तो SN लिखूं। यहाँ पे 4 था तो हम लोग ने एक कम किया, तो यहाँ पे SN है तो मैं लिखूं SN-1। तो हम लोग गाइज ये फॉर्मूला यूज करेंगे इन योर 11th नंबर सम। AN इज इक्वल टू व्हाट? SN माइनस SN-1। ऐसा कब यूज करना है?
तो भाई आप लोग के पास सम आप लोग के जो मीन्स क्वेश्चन है उसके अंदर सम गिवन हो, सम इज गिवन इन योर एग्जाम्पल, राइट। सो ये गाइज नोट है, आप लोग थोड़ा फोकस करना है इसके ऊपर, ओके। सो नाउ हम लोग सम स्टार्ट करें। So in your 11th number sum, you just see guys, in your 11th number sum, we have 11th number sum, right? See, if the sum of first n terms of an AP is 4n माइनस एन स्क्वायर, ओके। देखो गाइज यहाँ पे बाकी सब जो है वो फाइंड करना है, वो पहले मैं आप लोग को बोलता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग को सम में गिवन है दैट इज एस एन, बिकॉज सम इज गिवन ना, एस एन इज गिवन, इट्स 4n माइनस एन स्क्वायर, ओके। आप लोग क्या करो 1 2 3 डालते जाओ, चलो 1 तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, सो 4 1 इज 4 माइनस 1 स्क्वायर इज 1, सो 4 माइनस 1 इट्स 3। चलो नाउ फाइंड करो S2, S2 क्या होगा 4 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 2 स्क्वायर, ओके। सो 4 2 इट्स 8 एंड 4, सो 8 माइनस 4 इट्स 4, ओके। चलो उसके बाद हम लोग 3 फाइंड करते हैं, 4 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 3 स्क्वायर, राइट। सो 4 3 इट्स 12 एंड 3 स्क्वायर इट्स 9, सो 12 माइनस 9 इट्स 3, ओके गाइज। सो क्या करना है, मैंने S1 S2 S3 फाइंड किया है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक Sn भी अवेलेबल है, इट्स 4n माइनस एन स्क्वायर। तो हम लोग एक काम करते गाइज, Sn माइनस 1 भी फाइंड कर लो। मैंने बोला था S1 S2 S3 देन आफ्टर सेकेंड लास्ट टर्म इज Sn माइनस 1, लास्ट टर्म इज Sn, ओके। सो Sn माइनस 1 फाइंड करें तो यहाँ पे n की जगह पे n माइनस 1 और यहाँ पे भी n माइनस 1 दी होल स्क्वायर, n को रिप्लेस करो बाय n माइनस 1। सो यहाँ पे 4n माइनस 4 माइनस यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर ले a माइनस b द होल स्क्वायर, सो इट्स n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, सो 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n एंड माइनस प्लस माइनस 1। सो अभी हम लोग गाइज इसको थोड़ा अरेंज करते हैं प्रॉपरली। फर्स्ट इज माइनस n स्क्वायर देन 4n प्लस 2n, सो इट्स 6n minus 4 minus 1, so it's minus 5. This is your Sn minus 1 term. Okay guys, so I hope कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने S1 S2 S3 Sn minus 1 फाइंड कर लिया है। अभी 1 by 1 जो फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। चलो तो सम में क्या गिवन है, सम में फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म गाइस, चलो बोलो। फर्स्ट टर्म मीन्स या तो S1 बोलो या तो A1 बोलो, ओके। सो S1 इज गिवन, इट्स 3 A1, बराबर। मैंने आप लोग को नोट में लिखवाया है S1 को ही A1 बोलते हैं, ओके। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स गाइस, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट टू टर्म का सम, ए मीन्स के S2 के लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला दिखाया A2, सॉरी इट्स नॉट A2, A1 प्लस A2, राइट। A1 और A2 का एडिशन करना है, बट हियर S2 इज अवेलेबल, S2 इज डायरेक्टली अवेलेबल, इट्स 4, यू जस्ट सी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आप लोग नहीं यूज करोगे तो चलेगा, डायरेक्टली S2 इज इक्वल टू व्हाट 4, राइट। चलो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट, सेकेंड टर्म, ओके। सेकेंड टर्म बाद में फाइंड करते हैं, थर्ड 10th एंड एंड टर्म। देखो सेकेंड टर्म भी फाइंड करनी है, थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है। सेकेंड टर्म हाउ टू फाइंड, देखो सेकेंड टर्म मीन्स A2, सेकेंड टर्म। तो A2 फाइंड करने के लिए मैंने आप लोग को क्या बोला, S2 माइनस S1, राइट। S2 इज 4, S1 इज 3, सो 4 माइनस 3 इज 1, राइट। नाउ थर्ड टर्म फाइंड करनी है, A3 एज यू नो कि भाई फॉर्मूला इज S3 माइनस S2, व्हाट इज S3 इट्स 3, S2 इज 4, सो 3 माइनस 4 इट्स -1, ओके। नाउ 10 भी फाइंड करना था, बराबर। यहाँ पे A10, सो योर फॉर्मूला इज S10 माइनस S9, ओके।
S10 माइनस S9, ठीक है। सो व्हाट इज S10? तो S10 के लिए हम लोग को तो यहाँ पे काउंट करना होगा। देख ओके गाइज, सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द बाय S10 सॉरी A10, ओके। मीन्स आप लोग को यहाँ पे सम में देख लो, आप लोग को सम में क्या बोला है, 10th नंबर टर्म फाइंड करो। व्हाट वी हैव टू फाइंड, देखो फर्स्ट टर्म हम लोग ने फाइंड सबसे पहले फाइंड करना बोला था। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? दिस इज योर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए तो आप लोग को याद है S1 और A1 इज इक्वल टू 3। देन आफ्टर डेट व्हाट वी इन लोग ने बोला व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहले दो टर्म्स का एडिशन कितना होगा, तो फर्स्ट टू टर्म्स का एडिशन है S2 इज इक्वल टू 4, ओके। A3 इज इक्वल टू देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू फाइंड बाय सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आप लोग को मैंने बोला सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो बाय A2 सेकेंड टर्म इज व्हाट, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। गाइस प्लीज ये फॉर्मूला याद रख लो, बराबर। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अगर मैं A3 फाइंड करने को बोलूँ तो आप लोग को याद रखना है S3 माइनस S2, ओके। तो A3 भी हम लोग ने फाइंड किया। चलो मुझे A10 नंबर की टर्म फाइंड करनी है, तो S10 माइनस S9। तो वैसे S10 माइनस S9 मुझे फाइंड करना है, बराबर। S10 माइनस S9, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट हैव दिस S10 एंड वी डोंट हैव दिस S9, सो S10 फाइंड करो गाइस, ओके। S10 हाउ टू फाइंड, तो वी हैव दिस Sn, तो आप लोग n की जगह पे 10 डाल दो। सो 4 हियर द वैल्यू ऑफ n इज 10, अगेन 10 स्क्वायर, so 40 minus 100, so your answer it's negative 60, okay. This is your S10, okay. Now what we have to find next, S9। S9 के लिए आप लोग खाली यहाँ पे 10 के जगह पे 9 कर दो, okay। So 4 9s are 36 minus 81, so what is 81 minus 36? It's 45 maybe, okay, negative 45। Let me check कि हम लोग बराबर कर रहे हैं। 81 minus 36, so 1 11 and over here 7, 11 minus 6 5, 7 minus 3 it's 4, okay। So clear all of you, it's negative 45। अभी दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस करो, चलो। negative 60, S10 is what, it's negative 60, S9 it's negative 45, okay। So minus 60 minus minus plus 45, okay। So minus 60 plus 45 it's minus 15 guys, okay। So your 10th number term is guys what, 10th number term जो है वो negative 15 है, okay। देखो गाइस कैसे करना है, Sn is given, तो S1 S2 S3 you just replace the value of n like 1 2 3, उसमें 10 भी डाल दिया, 9 भी डाल दिया, Sn माइनस 1 भी डाला, Sn तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये डेटा तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। फोकस करो कि कौन सी चीज़ फाइंड करनी है देन आफ्टर, ओके। चलो नाउ देखो मैं ये साइड निकाल रहा हूँ, आई विल रिमूव दिस साइड। सी ये साइड भी आप लोग को अगर हो गया है तो यहाँ पे भी मैं सी लिसन, Sn इज अवेलेबल, Sn में लिख देता हूँ, Sn इज 4n माइनस n स्क्वायर, राइट। Sn माइनस 1 एक्चुअली मुझे चाहिए, तो दैट्स व्हाई Sn माइनस 1 का आंसर जो है माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, वो भी मुझे रिक्वायर्ड है, दैट्स वाई उसको भी मैं रहने देता हूँ। बाकी का मैं सभी पोर्शंस निकाल रहा हूँ। चलो देखो सम में क्या क्या फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म देखो, आप लोग सम में देख लो, व्हाट वी हैव टू फाइंड बाय फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हम लोग ने फाइंड कर ली, ओके। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब पहली दो टर्म्स का एडिशन फाइंड करना था, S2 वो भी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। देन आफ्टर हम लोग ने सेकेंड टर्म फाइंड करनी थी, हम लोग को सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला S2 माइनस S1। देन आफ्टर व्हाट वी हैव टू फाइंड नेक्स्ट थर्ड टर्म, तो बाय थर्ड टर्म इज S3 माइनस S2, राइट, ओके। देन आफ्टर क्या बोला था, 10th नंबर टर्म, तो 10th नंबर टर्म मीन्स A10, तो S10 माइनस S9, ओके। नाउ यहाँ पे इन लोग ने बोला है nth टर्म भी फाइंड करो। क्या फाइंड करो, nth टर्म मीन्स an, और उसके लिए भी मैंने आप लोग को यहाँ पे पहले नोट में फॉर्मूला लिखवाया था Sn माइनस Sn माइनस 1, ओके। सो व्हाट इज योर Sn? Sn इज 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज योर Sn माइनस 1? इट्स माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। सो 4n माइनस n स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6n
minus minus plus 5. Okay, so n square both cancel, so your answer is 4n minus 6n plus 5. So 4n minus 6n, it's minus 2n plus 5. This is your last term guys, an. ओके, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, बराबर. सो इट्स योर आंसर इज माइनस 2n प्लस 5. तो गाइज क्लियर हुआ कैसे सॉल्व करते हैं इसको. हाँ, 11th नंबर 1 मैंने बोला आप लोग को थोड़ा टिपिकल है, टफ है एज कंपेयर टू अदर सम्स. ओके, सो क्लियर. ओके, सो आज हम लोग यहाँ पे इतना ही रखते हैं. आज हम यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं. ओके, सो वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. बाय, हैव अ नाइस डे.